अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ही होंगे। अच्छा बेटे, टुडे वी विल डू न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, कहते हैं कि हमारे पास गिवन है जी, वी हैव गिवन डैट आ टाइनी लेज़र बीम डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून, कि एक लेज़र बीम है वो अर्थ से कहाँ जा रही है? मून की तरफ डायरेक्ट। व्हाट इज सेइंग द बीम ऑफ हैव डायमीटर 2.550 मीटर एट द मून, कि जो बीम है उसका जो डायमीटर है वो कितना है बेटे? 2.50 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 1 वी हैव गिवन beam have diameter 2.50 meter and he is saying हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल, कि उसका डाइवर्जेंस एंगल आप उस बीम को कितना बेंड करें, यानी कि उसको डाइवर्ज करें, कि द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 10 की पावर 8, कि डिस्टेंस कितना हो जाए हमारा 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। वी हैव टू फाइंड एंगल, डाइवर्जेंस एंगल। ओके, हमने बेटे फार्मूला पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। व्हेन वी डिवाइड दीज टू वैल्यूज वी गेट अवर आंसर, वेयर एस इज 2.50 and r is 3.8 into 10 raised to power 8, and our angle will be 6.6 10 cube raised to power minus 9. The unit of angle is radian. Okay, now come to numerical number 2, in which he is saying a gramophone record turntable accelerate from rest to angular velocity 45 revolution per minute. रेस्ट में था, इट मीन्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0 रेडियन पर सेकेंड, ओके, एंड 45 फाइनल रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके बच्चे, वी नो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360, ठीक है, डिग्री, और वी कैन आल्सो से 2 पाई रेडियन, ओके, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट अवर आंसर in of final velocity 45 multiply 2 pi radian over minute is equal to 60 second. Okay, 2 30 15 3 15 4 2 2, so it means 3 by 2 pi radian will be our final angular velocity and is saying इन 1.60 सेकेंड के वेलोसिटी रेस्ट से 45 एवोल्यूशन हुई है 1.60 सेकेंड में। फाइंड व्हाट इज इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, वो हमने फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज 3 by 2 is equal to 1.5 pi radian minus 0 divided by time is 1.60, and we got our answer, which is 2.9 radian per second square. Okay, the unit of acceleration is radian per second square. It's angular acceleration. Got it? Okay, now come to numerical number 3, which is saying a body of moment of inertia is 0.80. The moment of inertia of a body is 0.80 kg per meter square, kg plus meter square, about a fixed axis with a constant angular velocity 100 radian per second. Angular velocity हमारे पास है 100 radian per second, and we have to find calculate its angular momentum capital L and torque। कैपिटल L हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है और
टॉर्क फाइंड करना है। ओके बेटे, वी नो वेरी वेल the angular momentum is equal to I omega, is equal to I omega. Now putting the value of I, moment of inertia, and angular velocity, which is 100, so our angular momentum will be 80 joule second. Okay, the next is torque formula is I alpha. The alpha is 0 because he is saying in this numerical the velocity is uniform, so the acceleration will be 0 because there will be no change in velocity, there will be no acceleration. Okay, acceleration is produced when there is change in velocity. Okay, so remember the acceleration is 0, so our torque is also 0. Got it? So our torque is 0. Okay students, hope you understood. Now come to numerical number 4, in which he is saying the consider rotating cylinder, कि एक सिलेंडर है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ही सेइंग इन द फिगर शोन इन फिगर, एक फिगर हमें शो है, ठीक है। जैसे ये पाइप, ये भी एक सिलेंडर है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे। देन ही सेइंग सपोज इट्स मास 5 kg, the mass of cylinder is 5 kg and r, radius of cylinder का गिवन है 0.20 मीटर, radius is 0.20 meter, and calculate the torque. We have to find torque plus angular acceleration, angular acceleration भी हमने find करना है। ओके बेटे, we know the torque is equal to r cross f, r cross f, और फोर्स भी हमारे पास गिवन है 0.60 न्यूटन। तो बेटे वी नो क्रॉस प्रोडक्ट आर एफ साइन थीटा एंड आवर एंगल इज 90 डिग्री। ओके, आर एफ और साइन 90 वी नो इज इक्वल टू 1. Okay, remember this thing. So RF sin 90, put the value of R, which is 0.20, put the value of F, which is 0.60. The answer is 0.12 Newton meter. Okay बच्चे जी, the next thing we have to find is angular acceleration. Okay, we have again formula of torque, which is I alpha. We have to find alpha. I, when come here, it will be divided, and we know the moment of inertia formula for cylinder is 1/2 mr square. We know that 1/2 mr square. Okay, the value of torque is 0.12, 1 divided by 2.5, multiply where m is 5, where r is 0.20 square, and our answer is 1.2 radian per second square. ओके बच्चे, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 4. नाउ कम टू न्यूमेरिकल नंबर 5. जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5 वी हैव गिवन दैट कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार, कि हमने एक स्टार का क्या फाइंड करना है बेटे, एंगुलर मोमेंटम, वेयर ऑफ mass 2 10 की 30 kg, 10 raised to power, the mass of star is 2 into 10 raised to power 30 kilogram. Okay, and radius 7, 10 into raised to power 5 kilometer, radius 7 into 10 raised to power 5 किलोमीटर, किलो 10 raised to power 3 होता है, ठीक है। तो 5 और 3 मिलके 8 मीटर, प्लस इफ इट मेक वन कंप्लीट रोटेशन, एक मुकम्मल चक्कर मुकम्मल करे, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब कि ये स्टार है, ये इस तरह रोटेट करके एक चक्कर मुकम्मल करे, जैसे ज़मीन घूमती है ना एक दिन में 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है अपने एक्सिस के गिर्द जी। तो इसी तरह कह रहा है एक चक्कर मुकम्मल करे कितनी दिन में, 20 दिन में। द टाइम इज 20 days. ओके,
नाउ व्हाट ही सेइंग, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमने इसकी क्या फाइंड करनी है जी, काइनेटिक एनर्जी, और एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड करना है। ओके बच्चे, अब टाइम पर यूनिट होता है सेकंड। अब एक दिन में होते हैं 24 आवर, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। ओके, 20 मल्टीप्लाई 24 आवर 60 × 60, द आंसर इज, हमारे पास क्या आंसर आया जी, 1728,000 ओके। चल, अब हम क्या करेंगे, फाइंड करें। हमने बेटे फार्मूला पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम का, आई इंटू ओमेगा। ठीक है, हमारे पास आई, अब ये क्या है बेटे, स्फीयर। स्फीयर का जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना हमारे पास, उसकी वैल्यू है बेटे 2/5 mr², और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t। गॉट इट। चले, नाउ अब हम क्या करेंगे बेटे, वैल्यूज पुट करेंगे। चले, 2/5 मीन्स 0.4, the value of m 10 raised to power 30, where r is 7 into 10 raised to power 8 square, and where 2 into pi, the value of pi, okay, and the time taken 1728000, and we got our angular momentum, which is 1.42 into 10 raised to power minus plus का 42, and unit is joule second. Yes, unit is joule second. Okay बच्चे जी, now come to its other part in which he is saying calculate kinetic energy. We know formula of kinetic energy 1/2 I omega square जी। kinetic energy is 1/2 I omega square जी, 1/2 as it is, the value of I 2/5 mr², where omega 2π/t square। ओके बच्चे, चले, मीन्स के ये जो आंसर आया है, आप सिंपली इसका स्क्वायर लेना है यहाँ पे और 2 से डिवाइड करना है, बहुत वही चीज़ें हैं। चलो देखते हैं, 1/2 2/5, द वैल्यू ऑफ m 2 into 10 raised to power 30, the value of r 7 into 10 raised to power 8 into 2 pi की वैल्यू 3.14, और टाइम इज 1172800, इसका स्क्वायर। और हमारी किनेटिक एनर्जी आ गई जी कितनी, जब हमने ये वैल्यूज पुट की, किनेटिक एनर्जी है जी हमारी 2.58 इंटू 10 रेज टू पावर 36 जूल, अवर आंसर। ओके बच्चे, चलें चेक करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 को जी। हमारे पास गिवन है जी, वी हैव गिवन डैट 1000 kg कार का मैस कितना आ गया जी, 1000 kg, मूविंग विद a velocity, yes, with the speed 144 kilometer per hour, speed is 144 kilometer per hour. We convert into meter per second by multiply 1000 and divided by 3600, and we get our speed in meter per second, which is 40 meter per second। and कितनी देर में हुई है, कर्व रेडियस 100 मीटर, एक सर्कुलर पाथ में लगाया, 100 मीटर इसका रेडियस है, रेडियस इज 100 मीटर। कहता कैलकुलेट इट्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वी नो द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r, put the value of m which is 1000, the value of v 40, and where radius is 100। ओके, ये आया 1600 और 16,000। the unit of force is Newton, you can also
write it 16 kilonewton because 16 10 raised to power 3. Okay, hope you understood. Now come to numerical number 7. Number 7 we have given that कहता what is the least speed, स्पीड फाइंड करें, कम से कम, लीस्ट कहते हैं कम से कम, वो स्पीड फाइंड करें, कौन सी स्पीड एट विच एरोप्लेन एग्जीक्यूट वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर, कितना उसका डिस्टेंस उसने बताया वर्टिकल लूप, ठीक है, एक उसने मूव किया कितना 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर. Got it? Next he saying radius. So there will be no tendency for pilot to fall down at highest point. कि वो किस तरह उसको रोटेट करे कि वो नीचे ना गिरे, वो स्पीड बताए. ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्पीड बढ़ती है ना तो उसको मूव करने में ईजी होता है. ठीक है, हाँ, सेंटीमीटर फोर्स जो उसको मिल गई तो वो फॉल की बजाय मूव करेगा सर्कल में. जी, तो हमने बेटे फार्मूला पढ़ा हुआ है स्पीड का, रूट ऑफ जी आर. लो जी, द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 ms-2. 9.8 multiply 1000 and our answer is 99, means round of 98.9 meter per second. You can also write it is 99. Okay, chale. Come to next numerical, which is numerical number 8. We have given that the moon orbit of earth, कि चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है दायरे में, ऑर्बिट में, एंड सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ, और हमेशा उसकी सेम साइड अर्थ को फेस करती है. ठीक है, कहता है कि डिटरमाइन द रेशो ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम कौन सा निकालना है, स्पिन की रेशो निकालनी है किसके साथ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ. चलें जी, हमने फाइंड करनी है उसकी स्पिन की और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की रेशो. जी चलें जी, उसने डिस्टेंस बताया दोनों के, तो मैं कहता डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ इज 3.85 10⁸. द डिस्टेंस इज 3.8 3.85 इंटू 10⁸ मीटर, एंड डिस्टेंस हो गया, रेडियस ऑफ मून इज 1.74 10⁶. रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 10⁶ meter. Okay, the radius of the moon is 1.74 10⁶ मीटर. चले जी, हमें पहले दोनों एंगल मोमेंटम की वैल्यूज पता होनी चाहिए. ठीक है बेटे, तो स्पिन की हमारे पास वैल्यू है, हमें फार्मूला तो पता है आई ओमेगा, एल एस ओवर एल नोट आई ओमेगा. अब ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए जी, एंगुलर वेलोसिटी हमारी दोनों की, क्योंकि क्या होगी बेटे सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, मीन्स ओमेगा ओमेगा से कैंसिल. और जो आई की वैल्यू है स्पिन के लिए हमें पता है, स्पिन में वो बात करता है एक स्फीयर बन जाता है. ठीक है, तो हमने उसका फार्मूला पढ़ा है जी 2/5 mr², और जो फिर वो सर्कल में मूव करेगा, सर्कल के लिए हम उसको कंसीडर करेंगे सिलेंडर, जिसके लिए सर्कल, उसके लिए mr². ठीक है, हाँ चलें अब डील करते हैं इसके साथ. हमारे पास है वैल्यूज़ जी. जी बेटे, अब मैथ्स भी क्या है, सेम है, मैथ्स भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, चलें ये मैथ्स भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2/5, एक कैपिटल आ रहा है और एक स्मॉल आ रहा है. ठीक है बच्चे, याद रखिएगा. चलें वैल्यूज पुट करते हैं. 2/5 कैपिटल आर इज 1.74 इंटू 10⁶ स्क्वेयर, एंड स्मॉल आर इज 3.85 इंटू 10⁸ स्क्वेयर, एंड वी गेट अवर आंसर जी, विच इज 8.2 into 10⁻⁻6. Because it's a ratio, there will be no unit. Remember this thing. When we have given ratio between two similar quantities, there will be no unit. Okay, बच्चे जी. Now come to numerical number 9, in which we saying that the earth rotate on its axis once a day. ज़मीन अपने गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है एक दिन में.
मतलब हमारे पास टाइम पीरियड है T1, 1 डे, वी कैन आल्सो राइट इट 24 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट सपोज कहता है ज़मीन क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सुकड़ जाए, जिससे क्या हो, उसका रेडियस क्या हो जाए, हाफ रह जाए। कितना रेडियस हो जाए, हाफ। रिमेंबर दिस थिंग। चलें जी, तो रेडियस हमारा कितना हो जाए बेटे, हाफ हो जाए पहले का जी। देन ही सेइंग हाउ फास्ट, अब वो कितनी जल्दी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब क्योंकि आपको पता है ज़मीन क्या है, स्फीयर है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/5 mr²। ठीक है बेटे, चलें देखते हैं। अब हमारे पास अब आएगी रेशो, क्योंकि 2 टाइम पीरियड है, हम उनको क्या करेंगे बेटे, कंपेयर करेंगे। चलें देखते हैं जी। हमने फार्मूला पढ़ा है उसका, रोटेशन में क्या आता है जी, एंगुलर मोमेंटम L। ठीक है, चलें देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है जी एंगुलर मोमेंटम, बिफोर आफ्टर दोनों कंपेयर कर लेते हैं। आई ओमेगा होता है बेटे, मेगा 1 ओमेगा 2, आई तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलें लेट्स सी। आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, वट एवर इट इज़। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं जी। 2/5 mr², जी बिल्कुल 2/5 mr²। और r², ओमेगा 1 है हमारे पास 2π/T1, इधर वैल्यू है 1/10। हमने पढ़ा थिन लॉन्ग रोड, ठीक है, हाँ, लॉन्ग रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/10 mr², और ओमेगा 2 2π/T2। अब देखें 2π से कैंसिल, और ये m से कैंसिल, r² से कैंसिल, हमारे पास जस्ट पीछे बचा 2/5 T1 इज इक्वल टू 2/T2। अब आप देखें ये 2 भी कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, वेट मिनट, ये तो 2 है ही नहीं, खाली ये 1/10 है, T2। चलें जी, अब हमने फाइंड क्या करना था, T2 निकालना है, सच ये T2 निकालना है। T2 इधर आ गया, 1/10 ऐसे ही रहा, ये 5 ऊपर 2 नीचे, और ये T1 हमारा ऊपर आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 24। चलें जी कैलकुलेट करते हैं जी। 2 5 2 दा 10, ठीक है, तो 2 टू द 4, 4 के में 24 का आता है 6 पे आता है, तो कितना टाइम आ गया हमारे पास, 6 आवर्स। ओके बच्चे जी, चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। जी बेटे, न्यूमेरिकल नंबर 10 है हमारे पास, कहता है वी हैव गिवन डैट व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड। क्या फाइंड करनी है, ऑर्बिटिंग स्पीड किसकी जी, ऑफ टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट 900 किलोमीटर के ऑर्बिट गिवन है। ठीक है, जिसका जो उसने कहा 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से ऊपर जो भी चीज़ होती है सैटेलाइट, उसे हम कहते हैं हाइट। रिमेंबर दिस थिंग, कितनी उसने हाइट पाई है, 900 किलोमीटर, मीन्स 910⁻³ मीटर इज अवर हाइट। सेकेंडली ही सेइंग टेक द मैस ऑफ अर्थ 6 अब मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, जो आप पहले याद भी कर चुके हैं 9th क्लास में, 6×10⁻24 किलोग्राम मैस, और रेडियस इज 6.4×10⁻6 मीटर। अब बेटे बात इस तरह है कि रेडियस ऑफ अर्थ का जो ऑर्बिटिंग स्पीड का फार्मूला है g/r। अब हाइट की वजह से r+h हो जाता है। अब हमारे पास इस g की वैल्यू नहीं गिवन, हमने g का फार्मूला पढ़ा है बेटे, ये Gm/r+h²। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना बेटे, तो ये देखें Gm/, नीचे तो स्क्वायर है, ऊपर नहीं है, तो ये स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचा Gm/r+h। अब हमने सिंपली क्या करना है, इधर वैल्यूज पुट करनी है इनकी, और हमारे पास आंसर आ जाएगा कि वी नोट एज इट इज़। ठीक है, ये देखें जी की वैल्यू भी याद आपको होनी चाहिए, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जस्ट ये एच आपके पास गिवन है, बाकी तो ये दो भी आपको वैसे गिवन है,
लेकिन आपको ये ज़ुबान नहीं आनी चाहिए जी। हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ है हमारे पास 6.0 10⁻24 के जी, एंड द वैल्यू ऑफ आर, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 10⁻6 प्लस height is 900 kilometer, 900 10⁻3. Okay, when we solve these values, we get our speed, we get our answer, which is 7.4 10⁻3 meter per second. In short, 7.4 किलोमीटर पर सेकंड. गॉट इट? ओके, तो ये थे बेटे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स. ठीक है, चलें मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लाइक किया हो तो आपने, ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सी यू देन. अल्लाह हाफिज़.